आइए हम प्रार्थना करें. Shall we pray? Father in heaven, thank you so much for your grace. Thank you so much for your love and one more privilege to gather together in the study of your words. We want to take time to thank you. We want to take time to praise you and honor you for you're striving hard to teach us. You're striving hard to equip us, to prepare us for for the last work that you have for us, and Lord, and as the last day people. Thank you for your loving kindness, and we pray and we plead. May your Spirit help us continually. May your Spirit lead us continually. And we pray, may every study be according to your will and according to your wish. And we pray, Lord, may you draw us closer and closer unto thee. And we want to praise you for the group Live for the Lord. And praying, Lord, may your rich and heavenly blessings be upon this group in a very special way. And Lord, we pray for those who are connected here. May you bless them. And praying, Lord, may they be richly blessed as we study the words together as a family. And we pray many might be willing to join, and maybe internet constraint or other things are trying to limit them. We pray, Lord, may you remove everything so that they could join and be richly blessed. Thank you, Lord, once again. And we pray, please, may you help us and may you lead this study according to your will. In Jesus' name we pray. Amen. हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे आयु को, हमारे जीवन को बढ़ाया है. We thank God that He has been gracious to us and He has lengthened our lives. We want to really thank Him and praise Him. And also, I really want to thank all of you who have taken time to join. मैं आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे साथ जुड़े हैं आज के मीटिंग में. May God bless you all, and I sincerely pray that God will speak to each one of you. और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप में से हर एक के साथ बातचीत करेंगे. I hope and pray that this is not your first time joining with us. And if this is the first time, then I would request you also to please revisit the studies that we already had in the past 2 days. And I believe, hopefully, that the recordings are already on YouTube channel. मैं विश्वास करता हूं कि ये शायद आपके लिए पहला दिन ना हो, और यदि आज आपका पहला दिन है हमारे साथ जुड़ने में, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि पिछले दिनों के पढ़ाइयों को आप कृपया करके जो है दोहराइएगा. और मैं विश्वास करता हूं कि वो लिव फॉर द लॉर्ड यूट्यूब चैनल में अब तक जो है डाल दी चुकी हैं. And today we are going to continue in the study of the millennium and the end of sin. आज भी हम जो है मिलीनियम और पाप के अंत के विषय में और हम जो है आगे पढ़ाई करेंगे. And this topic is vast, and we are going really very slow because we want to understand everything clearly and broadly. हम जो है आज भी मिलेनियम और पाप का अंत के विषय में पढ़ाई करने वाले हैं. और ये विषय जो है बहुत गहरा है, और हम इस विषय को गहराई से और बेहतरी से हम समझना चाहते हैं. और हम देखें तो जैसे हम सीख रहे थे, एंड इफ वी सी as we were learning and as we made a point at one point of time that when we study the Bible, we should study the Bible in first gear. जैसे हमने एक बार एक बात कही थी कि जब हम बाइबल का अध्ययन कर रहे हो तो हम हमेशा उसे जो है पहली गेयर में हम पढ़ाई करें. Let us not hurry when we are studying the word, but let us go slow and understanding everything clearly and brightly. जब भी हम बाइबल अध्ययन करते हैं तो आइए हम धीमा धीमा से जाएं और गहराई से और बेहतरी से जो है हम चीजों को समझते चले जाएं. तो अगर हम देखें तो हमने बहुत चीजों को हमने अब तक जो है देख चुके हैं, और उम्मीद करता हूं कि और चीजों को आगे हम देखेंगे. टिल नाउ वी हैव सीन मेनी थिंग्स एंड वी आर गोइंग टू सी मेनी मोर थिंग्स.
So if you were yesterday with us, then we were looking at few things, and rather we looked to the book of Revelation. Rather we took a review of the book of Revelation. यदि आप हमारे साथ कल थे तो हम जो है प्रकाशित वाक्य की किताब को देख रहे थे। हम देख रहे थे ऊपरी स्तर से कि प्रकाशित वाक्य जो है क्या तस्वीर को हमारे सामने पेश करता है। We want to understand the millennium. And to better understand the millennium, we have to really look into the book of Revelation. हम जो है मिलेनियम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस 1000 वर्ष को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको बेहतरी से समझने के लिए हमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रकाशित वाक्य की किताब में क्या हो रहा है। What is leading up to the millennium, we have to really understand that. कौन सी घटनाएं हो रहे हैं 1000 वर्ष से पहले, उन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। And one thing we realized through the study is this, that the journey to sorry. The journey to millennium is not going to be easy, but one thing we are sure of, and that is God will be with us through the entire journey. हमने देखा कल की पढ़ाई के दौरान कि जो 1000 वर्ष तक का सफर जो है आसान नहीं होने वाला है, पर हम वचन में देखें कि ये सफर में परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। We studied how God, Jesus himself, is actively present with his church. हमने एक साथ देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह जो है अपने कलीसिया के बीच में है। His church will never stand alone. परमेश्वर का कलीसिया कभी भी अकेला नहीं खड़ा होगा। Therefore, my friends, if you're the only believer in your locality or in your family, rejoice because God is with you. इसीलिए अजीजों, यदि आप ही अपने जगह में एक विश्वासी है या केवल आप ही परिवार में एक विश्वासी हैं, तो आप आनंदित हो, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ हैं। For today, we are going to see the three folds in the book of Revelation, or rather, I should say, the three folds that surrounds or that happens around the millennium. और आज हम उस तीन बातों को देखेंगे, उन तीन चीजों को देखेंगे जो कि मिलीनियम के इर्द गिर्द नजर आती है, या वो मिलीनियम जो 1000 वर्ष है उसके दौरान होती है। And to understand these three folds is very crucial. और ये तीन चीजों को समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। And again, I would request you, these studies are going to be extensive, therefore please consider taking notes. अजीजों, ये पढ़ाई जो है बहुत लंबी चौड़ी होने वाली है, तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप कृपया करके नोट्स लिखिएगा। Because we believe that these studies are not just a study, but this is just the beginning for you. क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि ये पढ़ाई केवल पढ़ाई नहीं है, पर ये आपके लिए एक शुरुआत है। Because God will very soon open doors for you where you will be asked to present these studies, these subjects. क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्द जो है आपके लिए दरवाजे खोलने वाले हैं, जहां पर आपको इन विषयों के विषय में बताने के लिए कहा जाएगा। Therefore, I plead with all of you, please consider taking notes. इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज आप जो है नोट्स लीजिए, आप जो है जरूर लिखिएगा। So today we are going to look at the threes which are surrounding millennium. तो आज हम जो है उन तीन चीजों को देखेंगे, जो तीन ये त्रिएक चीजों को देखेंगे जो कि 1000 वर्ष के इर्द गिर्द जो है घूमती है। सबसे पहला सबसे पहला जो है वो है तीन यीशु मसीह का आगमन। द वेरी फर्स्ट थ्रीज
we will see is the three comings of Jesus Christ. The second threes we are going to see is the three resurrections. जो दूसरा त्रिएक है, जो तीन है, वो हम देखेंगे वो है तीन पुनर्स्थान. The third threes that we are going to see is the three books of record. जो तीसरा तीन देखेंगे वो है तीन जो रिकॉर्ड लेने का जो पुस्तक है, जो पुस्तक लिखे गए हैं, उनके विषय में हम लोग जो है देखेंगे. एंड द फोर्थ थ्रीज वी आर गोइंग टू सी इज द थ्री फेजेस इन मिलेनियम. और जो तीसरा तीन देखेंगे वो है तीन तीन घटनाएं कह सकते हैं आप, जो कि मिलेनियम के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही हैं. सो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थ्री इज द थ्री फेज इन मिलेनियम. सबसे पहला तीन है, तीन भाग कह सकते हैं, जो 1000 वर्ष के साथ जुड़ी हुई है. ये कुछ शब्दों में जो है, जैसे कि ये तीन भाग जो है मिलेनियम का, वो उस पे उतना हम गहराई से नहीं देखेंगे. ये यीशु मसीह का तीन आगमन, उसको उतने गहराई से नहीं देखेंगे. पर जो बाकी तीन है, उनको हम बड़े गहराई से हम देखने वाले हैं. So the threes that we are looking into, the three phases in millennium, we are not going to go very deep into it because we are going to covering it through the studies, just trying to present it. And the second threes, that is the three comings of Christ, we are going to again not go deep into it because we all very well know it. But the remaining two threes, we are going to go a little bit deep in them. So the three phases in millennium. The three phases in millennium, the first phase is the pre-millennium, that is before the second coming of Jesus Christ, because we are seeing that many events are happening before millennium. जो पहला भाग है मिलेनियम का वो है मिलेनियम से पहला, मतलब यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले की घटना. जो दूसरा भाग है मिलेनियम का वो है जो 1000 वर्ष है उसके दौरान, 1000 वर्ष है उसके दौरान. द सेकेंड फेज इन द मिलेनियम इज थ्रू द मिलेनियम. फर्स्ट इज बिफोर द मिलेनियम, प्री मिलेनियम, थ्रू द मिलेनियम, एंड द थर्ड इज पोस्ट मिलेनियम, दैट इज आफ्टर मिलेनियम. जो पहला है वो है मिलेनियम के पहले, 1000 वर्ष से पहले. उसके बाद जो है दूसरा भाग है वो है 1000 वर्ष के दौरान, और तीसरा भाग है 1000 वर्ष के बाद. And this is crucial to understand. Why? Because if we have the understanding of how things are lined up or how there is a division, it will really help us to understand what is really happening and how events are unfolding. और इन तीनों भाग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि इसकी हमें अच्छी पहचान होगी, अच्छी ज्ञान होगी, तो हमें जो है इन 1000 वर्षों को समझने में और अलग अलग घटनाएं किस समय में हो रही हैं उनको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी. Therefore, I will repeat myself once again. First is in the three phases in millennium. First is pre-millennium, then through millennium, and post-millennium. And there are different events happening which are very crucial, and therefore having a clear understanding of to where these events are leading, it becomes very imperative to understand many things that are connected to the millennium. इसीलिए मैं जो है अपने आप को दोबारा दोहराना चाहूंगा. जो तीन भाग है मिलेनियम में, सबसे पहला है 1000 वर्ष से पहले, 1000 वर्ष के दौरान और 1000 वर्ष के बाद. और इन तीनों का समझ रखना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि घटनाएं जो है बहुत से हो रहे हैं, बहुत से घटनाएं जो हो रहे हैं. और यदि हमने इन तीनों
चीजों को समझ लिया तो हमें बाकी जो चीजें 1000 वर्ष से जुड़ी हुई है उनको समझने में हमें बहुत ज्यादा आसानी होगी। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के 3 आगमन। Then we see the 3 comings of Jesus Christ. The very first coming was when he came as a babe. The second coming of Jesus Christ is when he will take all the saints with him. And the third coming of Jesus Christ is after 1,000 years, or rather after millennium, to bring an end to sin. फिर हम देखते हैं 3 यीशु मसीह के आगमन। सबसे पहला, जब वो एक बालक के समान जो है चरनी में पैदा हुए थे, वो यीशु मसीह का पहला आगमन रहा। दूसरा आगमन जो है वो समय होगा जब वो पवित्र जनों को अपने साथ जो है लेकर जाएंगे, जिसके बाद जो है 1000 वर्ष की शुरुआत होगी। फिर उसके बाद तीसरा आगमन जो कि उस 1000 वर्ष के बाद होगी। तो इन तीनों आगमनों को भी हमें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि अब तक जो है जो चीजें हमने पढ़ी है वो जो है आपने जो है नोट कर लिया है। एंड आई बिलीव दैट वट एवर थिंग्स वी हैव स्टडीड thus far, you have noted very well. The first thing we saw is 3 phases in millennium and 3 comings of Jesus Christ. And if you have questions, if you have some doubts somewhere, please consider writing a question, so that when we are up, then you can put up the question so that we can discuss more on that. यदि आपको कोई समझने में कोई परेशानी होगी या मुझसे कोई गलती होगी आपको समझाने में, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप एक सवाल लिख लीजिएगा तुरंत ही, ताकि जब हमारा ये अध्ययन खत्म हो तो आप उस सवाल को रख सकते हैं, ताकि उस सवाल में और हम चर्चा कर सकें। Now we'll try to understand. So we have pre-millennium, through millennium, and post-millennium. And pre-millennium, it goes all the way, we can say, all the way from the time Adam fell into sin. हमने देखा कि जो 1000 वर्ष है उनके 3 भाग है, 1000 वर्ष से पहले, 1000 वर्ष के दौरान और 1000 वर्ष के बाद। और यदि हम 1000 वर्ष से पहले की बात करें तो वो जो है आदम के समय तक जाता है, और उस समय बहुत सी घटनाएं हो रही हैं और हम उन सब घटनाओं को नहीं देखने वाले। फिर 1000 वर्ष के दौरान भी बहुत सी चीजें हो रही हैं जिनको जो है हम आगे पढ़ाइयों में हम देखने वाले हैं। फिर 1000 वर्ष के बाद और कुछ घटनाएं हो रही हैं, उनको भी जो है हम आगे देखने वाले हैं। Then we see that 3 comings of Jesus Christ. We see that the first coming of Jesus Christ happens in pre-millennium. 1000 वर्ष से पहले जो है आप देखेंगे कि यीशु मसीह का पहला आगमन होता है। And at the second coming of Jesus Christ, the millennium begins. हम देखते हैं कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन में जो है वो 1000 वर्ष की शुरुआत होती है। हम देखते हैं फिर जो 1000 वर्ष के बाद जो है यीशु मसीह का तीसरा आगमन होता है। 1000 वर्ष के बाद यीशु मसीह का क्या होता है? तीसरा आगमन होता है। After 1,000 years or post millennium, we see the third coming of Jesus Christ. So I hope these three are very clear, and I hope there is no confusion. And now two more things remain, the two more threes remain. And the first one, we are go with the 3 resurrection, और 2 और 3 रह रहे हैं। और सबसे पहला जिसको हम देखेंगे वो है पुनर्स्थान, सो हम देखते हैं कि पुनर्स्थान में भी 3 पुनर्स्थान है, और मैं विश्वास करता हूं कि आप जानते हैं। एंड वी नो दैट इवन इन रेजरेक्शन देयर आर 3 resurrection, and I believe
you know them, it is more like a revision for all of us. So the first resurrection is the resurrection of the righteous, or we can say resurrection of the saints. तो पहला जो पुनरुत्थान है वो है पवित्र जनों का पुनरुत्थान। क्या है? पवित्र जनों का पुनरुत्थान। And if you want to look at this, I can give you Bible text. I can give you the writings of Ellen White. There are many things we can see in the scriptures where we see the evidence that there is first resurrection as well. हम जो है इसको, जो पहला पुनरुत्थान है उसके विषय में हम बाइबल में कई आयत देख सकते हैं। बैन एलोन वाइट की लिखी हुई बातों में भी जो है इन चीजों को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब जो है मैं आपको कुछ आयतें देने की कोशिश करूंगा जहां आप पढ़ सकते हैं, और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप कृपया करके जो है उन आयतों को आप लिख लीजिएगा। तो हम देखते हैं कि जो पहला जो है पहला जो पुनरुत्थान है, पहला जो जी उठाए जाएंगे, इसको आप यदि पढ़ना चाहे तो इसका जो है आप इसके विषय में आप पढ़ सकते हैं पहला थिस्सलुनी उसका 4 का 16 से लेकर 17। इफ वी आर looking for a text, then for first resurrection, then you can open to the book of First Thessalonians chapter 4 verse 16 through 17. Please, when after this study, please consider reading those texts. So now we want to understand few things. Now we want to understand few things. The resurrection of the righteous dead, the resurrection of the saints, it's happening at the second coming of Jesus Christ. जो पुनरुत्थान है पवित्र लोगों का, वो कब हो रहा है? यीशु मसीह के दूसरे आगमन में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बिल्कुल स्पष्ट है। और ये जो है कब हो रहा है? 1000 वर्ष से पहले। ये जो पहला पुनरुत्थान है ये 1000 वर्ष से पहले हो रहा है। All who died in Christ, the faithful from Adam to the last saint, those who believed in Christ, they will resurrect at the second coming of Jesus Christ. जितनों ने भी जो है अपने आप को यीशु मसीह के हवाले किया और जो यीशु मसीह के लिए मरे, जितने भी विश्वासी थे आदम से लेकर आखिरी विश्वासी तक, वे सब जो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन में जी उठेंगे, और ये वो 1000 वर्ष से पहले होगा। Then comes the second resurrection. This is the resurrection of the wicked. इसके बाद आता है दूसरा पुनरुत्थान, और ये है किसका पुनरुत्थान? दुष्टों का पुनरुत्थान, जो पापी है उनका पुनरुत्थान। The first resurrection is the resurrection of the saints. जो पहला पुनरुत्थान था वो पवित्र जनों का पुनरुत्थान था। The second resurrection is the resurrection of the wicked. जो दूसरा पुनरुत्थान था वो जो है दुष्टों का जो है वो पुनरुत्थान है। And the resurrection of all the wicked dead, those who rejected God, this takes place after 1000 years, at the end of the 1000 years. जो पुनरुत्थान है दुष्टों का, मृत दुष्टों का, जिन्होंने यीशु मसीह को ठुकराया, परमेश्वर को ठुकराया, वो 1000 वर्ष के बाद, या कहेंगे 1000 वर्ष के अंत होने के बाद जो है उनका पुनरुत्थान होगा। And all the lost of all the ages, or rather in other terms, the ones, those who rejected God from the time of Cain to the last rebel against God, after 1000 years they will be resurrected. जितनों ने भी, जो लोग खो गए हैं, जिन्होंने भी परमेश्वर को ठुकराया है, कैन से लेकर आखिरी विरोधी परमेश्वर का, वो सब जो है इस दूसरे पुनरुत्थान में जो है वो जीवित होंगे। इनको जो है जिलाया जाएगा 1000 वर्ष के समाप्त होने पर। एंड ऑल्सो
something to note is this: the ones those who will be resurrected in the first resurrection, they are entitled for eternal life. जो लोग पहले पुनरुत्थान के भागी हो रहे हैं, वो लोग हमेशा का जीवन को पाएंगे। और the ones those who are taking part in the second resurrection, they will be eternally lost. जो लोग दूसरे पुनरुत्थान के भागी होंगे, वो हमेशा के लिए जो है उनका खात्मा होगा। Then the third resurrection is called special resurrection. जो तीसरा पुनरुत्थान है, उसे खास पुनरुत्थान कहा जाता है। Now, here you have to really pay close attention. This is one of the resurrection which the Bible talks about, and it is going to happen as much as the first and second resurrection is going to happen. जो तीसरा पुनरुत्थान है, जो कि खास पुनरुत्थान है, इस पर हमें खास ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप कोई उलझन में आ जाए या संकोच में आ जाए। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो खास पुनरुत्थान है, ये जैसे पहला और दूसरा होगा, वैसे ही ये भी बिल्कुल जो है ये पुनरुत्थान भी होना आवश्यक है। इन the in the special resurrection, this happens just before the second coming. Note this: the special resurrection, it will happen just before the second coming. ये जो खास पुनरुत्थान है, ये यीशु मसीह के आगमन के ठीक पहले होगा। Do not confuse between the first and the special resurrection. आप जो है उलझन में मत पड़िए पहला पुनरुत्थान और खास पुनरुत्थान के बीच में। The first resurrection happens at the second coming of Jesus Christ. There is a difference when we say at and before. So the first resurrection happens at the second coming of Jesus Christ, and special resurrection happens before the second coming of Jesus Christ. आप उलझन में मत पड़िएगा, जो पहला पुनरुत्थान है वो यीशु मसीह के आगमन में होगा, और ये जो खास पुनरुत्थान है, ये यीशु मसीह के आगमन के कुछ समय पहले होगा। जब हम आगमन में बोलते हैं और पहले बोलते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा क्या है, अंतर है। If you're taking notes, then please be careful when you are writing. So when you say first resurrection, it is happening at the second coming of Jesus Christ. यदि आप लिख रहे हैं तो आप ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि पहला पुनरुत्थान जो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन में हो रहा है, और खास पुनरुत्थान जो है उसके बिल्कुल थोड़ा पहले जो है होने वाला है। और ये जो and the special resurrection, it is going to happen just before the second coming of Jesus Christ. And now, just trying to contrast, in the first resurrection we see the saints are resurrecting. अगर हम पहला पुनरुत्थान को देखें तो उस पे पवित्र लोग जो है क्या हो रहे हैं, पुनर्जीवित किए जा रहे हैं, उनको परमेश्वर जिला रहे हैं, केवल पवित्र जन। But when we look at the special resurrection, in the special resurrection, two groups of people are being resurrected. यदि हम खास पुनरुत्थान को देखें तो इस पुनरुत्थान में दो समूह के लोगों का जो है पुनरुत्थान हो रहा है। सबसे पहले समूह के लोग वे लोग हैं जो कि विश्वास में, तीसरे स्वर्गदूत के विश्वास में वे मरे। The first group of people who are being resurrected in this special resurrection are the ones, those who died in faith under the third angel's message. The second group of people in this special resurrection are those who crucified Christ and those who are the fiercest enemy of Christ, or to say God's people. और जो दूसरे समूह के लोग जो कि इस खास पुनरुत्थान में पुनर्जीवित किए जा रहे हैं, वे लोग हैं जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए, और वे लोग जो यीशु मसीह के बहुत बड़े दुश्मन रहे हैं और
परमेश्वर यीशु मसीह के लोगों के दुश्मन रहे। I hope what is happening in the special resurrection, it is very clear. मैं विश्वास करता हूं कि क्या घटना हो रही है इस खास पुनरुत्थान में, ये बिल्कुल स्पष्ट है। And the evidence, or rather the proof text for special resurrection, we can go to the book of Daniel chapter 12 verse 2. अगर ये खास पुनरुत्थान के विषय में यदि आप बाइबल में देखना चाहें तो हम देख सकते हैं दानियल उसका 12 का 2। देखिए यहाँ पर वचन किस प्रकार कहता है, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt। हिंदी में इस प्रकार कहता है, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। We see the scripture is making very clear that there is going to be a resurrection in which the righteous and the wicked will be resurrected। देखिए वचन कैसे स्पष्ट करता है कि एक खास पुनर्स्थान है जहां पवित्र जन भी और दुष्ट भी पुनर्स्थापित किए जाएंगे। We want to see one more text that is found in the book of Matthew chapter 26 verse 64। 26 verse 64 हम एक और आयत को देखना चाहेंगे जो कि हमें मिलता है मत्ती उसका 26 उसका 64 में। यहाँ इस प्रकार लिखता है, Jesus said unto him, Thou hast said, Nevertheless I say unto you, hereafter shall ye see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven। हिंदी में इस प्रकार लिखता है, यीशु ने उनसे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिने और बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। If you really study the scriptures here, it is very clear that it speaks about the special resurrection। ये यदि आप देखें तो यहाँ पर जो है वाकई में जो है ये उस खास पुनरुत्थान का यहाँ पर जो है वचन जिक्र करता है। Because we know that here Jesus is speaking to the high priest, to the people back when he was about to be crucified। क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उन लोगों से बात कर रहे हैं, ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह को क्रूस पर जो है चढ़ाया जाने वाला था। We see here Jesus is telling them that hereafter you will see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven। हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि आप जो है मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। And here Jesus is telling to a particular group of people who are bent on crucifying him। यहाँ पर यीशु मसीह जो है कुछ लोगों को कह रहे हैं जो लोग जो है यीशु मसीह को जो है सूली पर चढ़ाने में जो है लगे हुए हैं। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि देखिए ऐसे कुछ घटना होगी। Now I want you all to think along with me। Are those people, those who crucified Christ, or those who wanted to crucify Christ, or those who joined to crucify Christ, are they still alive? आइए मेरे साथ सोचिए कि जो लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे या जो लोग जुड़े यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने के लिए, क्या वे लोग अब तक जीवित हैं? My friends, they are not alive। अजीजों, वो अभी जिंदा नहीं है। That means there is going to be something special where they will come back to life by the might of God।
क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये लोग जो है यीशु मसीह को बादलों में आते देखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि एक समय होगा, कुछ ऐसा अद्भुत होगा परमेश्वर की ताकत से कि ये लोग जो है पुनर्स्थापित किए जाएंगे यीशु मसीह के आगमन से पहले, ताकि जब यीशु मसीह दूसरी बार आए तो ये उसे जो है देख सके। We believe that something powerful is going to happen, and just before the second coming of Jesus Christ, this wicked sect of people, they will be resurrected so that they will behold Christ coming the second time. Just now summarizing: first resurrection. Who will be resurrected? Righteous. When? At the second coming of Jesus Christ. And what will be the result for them? Eternal life. हम अब दोबारा इसको दोहराना चाहेंगे। पहला पुनर्स्थान किनका होगा? धर्मियों का होगा। कब होगा? यीशु मसीह के आगमन में होगा। और इनका परिणाम क्या होगा? हमेशा का जीवन। The second resurrection. The second resurrection, who are being resurrected? Wicked. When it is happening? After 1,000 years. And what is the result? Second death. That is eternal death. There is no coming back for them. हम देखते हैं कि दूसरा पुनर्स्थान ये किनका है? दूसरा पुनर्स्थान दुष्टों का। और ये कब होगा? 1,000 वर्षों के पूरे होने पर होगा। और इनका परिणाम क्या होगा? हमेशा का मृत्यु। मतलब वो मृत्यु जिससे ये दोबारा लौटकर नहीं आ सकते। खास पुनर्स्थान। खास पुनर्स्थान किनका होगा? कुछ धर्मियों का। और ये कौन धर्मी है? जो कि उस तीन स्वर्गदूत के विश्वास में, तीन स्वर्गदूत का तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के विश्वास में जिनका मृत्यु है, वे लोग होंगे। और कुछ दुष्ट लोग होंगे, मतलब सबसे बड़े दुश्मन जो है यीशु मसीह के और उसके लोगों के, वे लोग पुनर्स्थान किए जाएंगे। और ये कब होगा? ये यीशु मसीह के आगमन से बिल्कुल कुछ समय पहले। और इनका परिणाम क्या होगा कि ये लोग यीशु मसीह को महिमा में आते हुए देखेंगे। The special resurrection, who are being resurrected? Some righteous. And when we are saying some righteous, it means the ones, those who died in faith of the third angel's message. And some wicked. And when we say some wicked, we are saying the ones, those who were the fiercest enemy of Christ and his people. And when it is happening just before the second coming of Jesus Christ. And what is the result? They witness God's glory. Friends, many things are happening. And whatever is written in the scriptures, it is going to be fulfilled. अजीजों, बहुत सी चीजें हो रही हैं, पर जो भी चीजें वचन में लिखी हुई हैं, वो सब बातें पूरी होंगी। वो सब बातें पूरी होंगी। और हम विश्वास करें इन बातों पर, क्योंकि ये सच है। फ्रेंड्स, वी नीड टू बिलीव दिस थिंग्स बिकॉज these things are true. And we are going to expound many more things on these lines. We don't have time. I think we're done for the day. But we are going to expound more and we are going to see more. अभी तो है, समय खत्म हो चुका है, पर इन विषयों में हम आगे और देखेंगे, क्योंकि इनमें और गहराई, अभी समय खत्म हो चुका है, नहीं तो इसमें और से गहरी बातें हैं। बट आई बिलीव व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, प्लीज revisit, please study them again, please share it with others. If you want to understand them better, then share it with others. अजीजों, जितना हमने आज पढ़ाई किया है, कृपया करके उनको आप दोबारा पढ़िएगा, उनको दूसरों के साथ साझा कीजिएगा। और यदि आप बेहतरी से उन्हें समझना चाहते हैं, तो आप उसे और ज्यादा दूसरों को बताएं। जितना आप दूसरों को बताएंगे, आप उतनी गहराई से समझेंगे। सो टुडे वी स्टडीड three resurrections, three comings of Christ, and three phases in millennium. आज हमने पढ़ाई किया तीन पुनर्स्थान, तीन यीशु मसीह के आगमन और तीन भाग 1,000 वर्षों में। Please do not forget them. And when we meet again tomorrow, we are going to study the three books, and also
we are going to cover many more things which are very important when we are considering these threes. जब हम कल दोबारा मिलेंगे तो हम और जो है उन तीन किताबों के विषय में हम देखेंगे, और ये तीन किताबें क्या है और इनका क्या भाग रहेगा इस 1000 वर्ष के दौरान, उसको भी हम देखेंगे। और ये तीन तीन चीजों को हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस जब हम इस 1000 वर्ष की हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको कुछ अहम सिखाया। आई बिलीव दैट गॉड हैज टॉट यू समथिंग important. If you are believing this message, if you are believing that these messages are true, अगर आप विश्वास करते हैं इस संदेश पे, और आप विश्वास करते हैं कि ये संदेश जो है सच्चा है, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े। प्लीज कम प्रे विथ मी। shall we pray? Father in heaven, thank you so much। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। We give you glory for you are true and your words are true। हम आपको महिमा देते हैं क्योंकि आपका वचन सत्य है और आप सत्य है। परमेश्वर पिता, आप आने वाले हैं और आप हमें अपने साथ लेके जाएंगे। फादर इन हेवन, यू आर गोइंग टू कम एंड यू आर गोइंग टू टेक अस एंड बी विथ अस दैट वी प्रिपेयर। हमारे साथ रहिए कि हम उसकी तैयारी करें। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। वी सबमिट आवर लाइव्स इनटू योर हैंड्स एंड बी विथ अस दैट वी डू नॉट फॉरगेट दिस स्टडीज बट आल्सो शेयर इट विथ अदर्स। हमारे साथ रहिए कि हम इन पढ़ाइयों को ना भूलें, पर हम दूसरों को भी बताने वाले हो सके। We commit the night into your hands, our lives into your hand। हम इस रात को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। We pray that may you strengthen our faith, build us in you। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे विश्वासों को मजबूत कीजिए और अपने आप में हमें दृढ़ता से बनाए रखें। हम धन्यवाद करते हुए, महिमा देते हुए, thanking you and giving you glory, we pray this prayer in Jesus name। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन।